যে তুমি ওইটা দেখেছো, এটা দেখেছো, এইভাবে বলছি তো একজন কাস্টমার না একজন ভেন্ডার এসছে, সে ভাবছে, বুঝতে পারছে না যে কি হচ্ছে, যে এখানে এই গান আলোচনা হচ্ছে, ওই গান আলোচনা হচ্ছে। তো আমাদের একজন কলিগ আছেন, তো ওনার একটা রিকোয়েস্ট ছিল তখন থেকেই যে একটা গান আর.ডি. বর্মনের, সেটা এখানে পারফর্ম করার জন্য। তো আশা করছি উনি আমার এই গানটার সঙ্গে সাথ দেবেন। নামটা আমি একটু পরে বলছি। একটু নাচে নাচি হোক সামনে এসে। समुंदर में नहा के भी नमकीन हो गई हो। देखते पाচ্ছি না? समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। हर लगा है प्यार का वो रंग, लगा है प्यार का वो रंग कि रंगीन हो गई हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। देखा तुझको दिल में आया, देखता ही रहूं, भीगे भीगे बदन को तेरे खिलता कमल कहूं। अरे देखा तुझको दिल में आया, देखता ही रहूं, अरे भीगे भीगे बदन को तेरे खिलता कमल कहूं। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। Come on everybody, let's dance. हो तो दिल की धड़कन हो जाए और जवान, चलती हो जब लहरा के तो दिल में उठे तूफान। हंसती हो तो दिल की धड़कन हो जाए और जवान, चलती हो जब लहरा के तो दिल में उठे तूफान। अरे लगा है प्यार का वो रंग, पहले भी बेहतर अब तो बेहतरीन हो गई। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। अरे लगा है प्यार का वो रंग, अरे लगा ये प्यार का वो रंग कि रंगीन हो गई।
Thank you, Suvasda, for supporting me for this song. Thank you. Thank you so much. Thank you. What a performance, Arnav. Arnav বাবা স্টেজে ফিরে আসবে কিছুক্ষণ পরেই, বাট তার আগে আমাদের কয়েকটা রেগুলার ইভেন্টস আছে যেগুলোতে চালু করতে হবে। What a performance, I repeat, Arnav, fantastic. It's everyone. Sorry, Dad. That was truly a masterpiece. You rock, Arnav. You simply rock. For the next set of awards, moving ahead, award of appreciation for an outstanding performance in knowledge of CRM execution. This is the new set of award we are introducing this year. And there are 3 number of awards. So I would like to call upon stage Mrs. Santi Nag to please come upon and say us a few words. Shanti ji, please come on the stage. Please, a big round of applause for Shanti ji. You are looking really gorgeous today. Kuch bolo. Good evening, everybody. I'm very happy to announce this winners of this category awards. Since the launching of this software, we have crossed lots of hurdles to establish this software, CRM software. And finally, they have managed to put in all their efforts to make this whole CRM system work flawlessly. They indeed have used this software very efficiently. And I must also thank our director to introduce this kind of award. Thank you, sir. And last but not the least, my colleagues. Without their support and inputs, it was not possible to achieve this kind of award, what it has, attained today. So thank you, everybody. Thank you, Shanti ji, for these lovely words. So as Sorbani said, we have 3 numbers of awards in this particular category. Can we start with the first one? And before doing that, I would rather request Shanti ji to take one envelope and say the name. Yes, Roshan Tiwari. Roshan ji, please say a few words to the audience. Thank you. Thank you, NK Realtors, especially Pawan sir. Thank you, my team, for the involvement, for the creations, for the motivation, so that I am today a little bit different among you, and my purely dedication for the team. Thank you. Thanks a lot, Roshan ji. Thank you. Ladies and gentlemen, this is the number 2 awards in this particular category. Shanti ji. Shomojit Datta. Was the summer of '69. Mr. Doctor, please say something. Really very excited. Unexpected award. I like to call someone over here, Mr. Anirban Chatterjee, who helped me a lot for this getting this award actually. Anirban sir. My team members, Shumon, Shujoyda, please come up. Indronil,
the entire team, Shuddho, Shubhajit, Nilratan. Akash. अरे कम ना, अरे चले आए तोरा, शुद्धो, स्वस्तिक, दीपायन, स्वस्तिक, अर्णव, शुभजीत, नीलरतन, last but not the least, অন্তরাদি, It's a great gesture, but we have a limited space in Atavus, so on the stage. So I would just request everyone, everyone's presence is appreciated. Thanks, Ajay Young. Thanks a lot. Thank you very much. The third one. So this is the third award. Samrat Paul. সম্রাট কি কিছু বলার আগে ওর ডেডিকেশন বলছি, হাত ভেঙে গেছে, পা ভেঙে গেছে, তাও খুঁড়িয়ে কাস্টমারদের সাথে চলছে, কথা বলছে। So this is the dedication. Samrat, say something. Good evening. I'm not a good speaker in public. I'll just tell this has been to everybody who's helped me taking this trophy today, to customer care team, to my back office support, of course to my reporting manager, Mr. Indranil Bose. I'd like to call Indranil in the stage and please say something on behalf of the high-end department. Thank you so much. And I believe this entire thing goes to Indranil a lot, because I had been lost 2 months during my hamstring injury. I had a fracture. So a lot of hard work has been done by him also in my absence. And for those days, I am here today, I believe. Thank you so much. Good evening, everybody. I just want to say a line for Samrat. In my 14 and a half years of professional experience, I have worked with a lot of colleagues. I can very safely say that Samrat ranks among the top 3 of my colleagues as far as dedication and his work ethics is concerned. You are an amazing guy, Samrat. Carry on this good work. You have a great future ahead. Thanks. Thank you, Indranilda. Thank you, Samrat. And thank you, Santi. Santi ji, thank you very much. Moving ahead to the next set of awards in the in-house department, which includes customer care, HR, admin, audit, commercial, and accounts. Award of appreciation for an outstanding performance in in-house department, category executive and senior executive. There are 4 number of awards. So I would like to call upon stage Mr. Biplab Kumar to please come upon and share his experiences with us. Biplab Sahib, kichu bolun. Good evening. So, about leadership, what I have learned over a period of 10 years, I'd like to point out those. There are 3 kinds of leadership which I have observed. One is through transparency, which is the hardest way, and very few people follow this. The second one is through balanced approach, and which is the easiest, and most of the people follow this. And there is another third one, which is the hybrid model, which is basically the mixture of
this transparency and balanced approach. So now it's up to us, or it's up to you, which path you would like to follow. So choice is yours. Since Sarvani told in the beginning about leadership, so I thought that I must share these 3 points with you. Moving ahead, I would say one line about Arnab Das. He is a better singer than an IT guy. And Sarvani and Suman Mukherjee, they are very versatile and very consistent. And also Anindita, very courageous lady. So thank you for your performances. And now going to the serious job. The first award, please. Pathikrit Chatterjee. কমার্শিয়াল অফারের জবটা প্রচন্ড টাফ জব, কিন্তু বলাটা কোথায় হচ্ছে সহজ হবে। দেখুন প্লিজ। Yeah, it's really a hard work to do. I would like to thank everybody of NK Realtors. I'm really happy to get this award. Thank you very much. Thank you very much. The second one. Arpan Das, I am very proud to announce this. Before I hand over to Arbon, I must say, with due respect to everyone, is the most well-mannered guy in NK Realtors. Arbon, kichu bolo. Very sweet guy. Thank you, first of all, Shumanda, for saying this. Next, I would like to say I was expecting an award for that last category that was for CRM maintenance. So I was thinking that if I would get that award, then I have to call, I have to request my sir, my boss, to come on the stage because I wanted him to come on the stage while I was taking this award. But it's my fortunate, definitely I'm very much fortunate that I have got him on the stage. I would like to say, first of all, I would like to thank everybody. But before that, I would like to say a few words to sir. Sir, without you, I would have been lost. Thanks for inspiring me. Thanks for guiding me. Thanks for making me where I am today, what I am today. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. And I would like to request every one of my team member to come on the stage. Everyone. And Sumanda, amar 12টা ছেলে এখানে এটে যাবে. Please, I would like to request to come on the stage, everyone. একটা গ্রুপ ফটো আমরা তুলতে চাই on the stage. We are coming up with the third award in this particular category. Abhishek Chakraborty. Giving up my last hope to stand. Wave goodbye to all my innocence. Looking in the mirror, and I can't
কিছু বলো প্লিজ টিমকে না দেখে। আমি জানতাম না আমি আজকে এখানে আসতে পারবো, and thanks everyone, my team, especially Orindam da. আমি অরিন্দম দাকে একবার স্টেজে ডাকবো, প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ অরিন্দম দা। Whatever I am today, only because of him, no one else. He is my mentor, my guide, and thanks to NK Realtors most of all. This is for you. Thank you very much, Anand. Thank you very much. Next, last. So this is the last award in this particular category. नीरज जायसवाल। I think Neeraj is not present here today, so Mr. Anirban Chatterjee is receiving this on his behalf. Neerajor hoye kichu bolbe? He is a dedicated person, I have seen, very dedicated. ও অনেকগুলো প্রজেক্ট হ্যান্ডেল করছে এবং এফিশিয়েন্টলি আমাকে তেমনভাবে ওর উপরে সুপারভাইজ করতে হয় না, হি ডু ইট মানে ভেরি স্পন্টেনিয়াসলি। ইজ এ গুড গাই। Thank you to both of you. Thank you, Biplav. Thank you very much. So, now may I request Mr. Abhijit Kaur, our beloved Abhijit Da, what we call him, to come on the stage and say a few words and his experience regarding this particular event and organization. Abhijit Da, if you can please join us. It is, hello. It is very tough to face the people like you who has the enormous capacity and the talent. And first, before starting anything, I must say that our performer, that I never expected that Mr. Arnab Das, Anindita, Shumon and Sharbani, what they did the fabulous job, and I didn't expect. So give big hands and big claps to them. And one thing that I am also saluting the people who are running the shows from the back. I am not taking any name. You the people, you can understand. And also I told to my boss also that अलग से हमने बोला है जे I didn't expect जे उन्होंने भी इतना सुंदर मोटिवेशन स्पीच दिए है. I am also spellbound. मैंने सबको मैंने आज सब छा गया है. तो इसमें हम जो आज बोलना चाहते हैं कुछ चीज़ है जो आप लोग जो you are the people that you take NK from ordinary to extraordinary with your hard work, with your efficient work, effective work, and management is also more sure that in near future also you will take NK Realtors extraordinary to more extraordinary. This is obvious. That is not the problem. Something I want to say today, that motivational speech, everything is there, everything is, and the time of when we take the interviews, when we take the suggestion from anybody, but they don't give this type of thing. मैं क्या है, हम थोड़ा रियलाइज किए हैं इसमें जी ये सब कुछ बोलना चाहिए क्योंकि दिस इज द फोरम दैट द पीपल 150 more than 150 people that I am facing and where I can say something for you. This me for also. पहले मेरे को कभी कोई नहीं बोला था, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ. इससे हो सकता है इसके जैसे कोई हम लोग किताब पढ़ते हैं आजकल
some 100 points are there. Please one thing, before starting anything, आप लोग थोड़ा ये करके सुनिएगा, थोड़ा डिसिप्लिन रहते हुए सुनिएगा. ये थोड़ा टाइम लगेगा मेरे लिए. It will take some time, and sometimes it may happen, some doubts will be there, but whenever my talk will be over, I am sure that all doubts will over, every doubts will be clear. If any doubts will be there in your mind, you can call me anytime. इसमें आना चाहते हैं, एक किताब में जैसे we read any book that is there are the 100 points are there. Sometimes it may happen, some 10 points is similar to my life, but neither the writer knows me or nor myself know him. तो इसमें हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इनकी रियल्टर में ही हुआ है. उससे पहले 2-3 साल दूसरा कंपनी में थे, 1-2 कंपनी में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ से ही हुआ है. तो हमको लगता है आज जो फोरम है उसके अंदर, क्योंकि 150 आदमी मेरे को कभी एक साथ मिलता नहीं है. अच्छा, इसमें हम लोगों को कभी कभी लगता है जैसे कुछ चीज़ आएगा, इसमें कुछ आएगा इनके के बारे में, कुछ 1-2 चीज़ जहाँ पे हम लोग जैसे मोटिवेशनल चीज़ में हम लोग 2-1 चीज़ लैकिंग भी कर रहे हैं, जहाँ पे और भी बेटर इनके से बेस्ट इनके से सेट जो बोला है, बेस्टेस्ट अगर कोई वर्ड होता, बेस्टेस्ट का कोई तो वर्ड होता नहीं है, अगर वो बना सकते हैं तो 1-2 चीज़ हम पॉइंट बोलना चाहते हैं. उसके बाद हम थोड़ा एक्चुअलाइजेशन बा इसमें मेरा जो फीलिंग्स है बा एक लाइफ टाइम जो एजुकेशन है उसमें हम जाएंगे. हमको आज इस उम्र में आके लगा है जे कोई कंपनी में आने के लिए एजुकेशन का बहुत जरूरी होता है, बट आफ्टर सम टाइम द लाइफ टाइम एजुकेशन इज रिक्वायर्ड. वो एजुकेशन धीरे धीरे कम हो जाता है एक टाइम के बाद, फिर लाइफ टाइम एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा आ जाती है. उसके बाद एक आदमी का चेंज होता है. और ये मैं रियलाइज़ किया हूँ, जो मैं लास्ट में बोलने वाला था मैं अभी बोल दे रहा हूँ कुछ बात, जो समटाइम्स व्हेनेवर वी रीच द एज ऑफ 60 years 70 years वी देन क्या है, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बाकी सब रिलेटिव्स, दोस्त, मेरा तो बाल पक गया, ये पक गया, कोई मेरे साथ नहीं है. मेरा इतना मैसेज आना, मेरे को सैल्यूट करना, कोई इससे जाता है, कोई डेजिग्नेशन का कुछ नहीं रहता है. उसके बाद क्या होता है, अपने आप बैठ जाएंगे, किताब पढ़ेंगे, तब लगेगा मनीषी का किताब पढ़ेंगे, तब लगेगा पढ़ने के बाद एक सेल्फ एक्चुअली मैस्लो थियोरी हम लोग जो देखे है पॉइंट आउट में एक सेल्फ रियलाइजेशन आते हैं. तो उसमें हम लोग को लगता है जो वो एज में क्यों, फिर ये मेरा एक फीलिंग है, वो एज में क्यों. अगर ये पहले एज में हम लोग पढ़ लेते तब क्या है, तो होता है एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन किसी काम पे आता तो नहीं है. तब एक चीज लगेगा, हो सकता है 60 साल 70 साल में ये अगर मैं पहले पढ़ लेता तो मेरा कुछ आज जो आदमी हूं उससे थोड़ा बहुत तो बेटर बन सकता था. तो मेरा तो 40 साल गुजर गया है, लेकिन आप लोग यू आर द यंग ब्लड ऑफ इनके रियल्टर्स. हो सकता है कुछ चीज मैं जो बताना चाहता हूँ ये आप लोगों का कुछ काम पे आ जाए. हो सकता है ये कुछ पॉइंट में इलेबोरेट करूंगा, हो सकता है कुछ पॉइंट में बहुत फास्ट भागूंगा, कुछ सीनियर आदमी के लिए बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए. हो सकता है कुछ जो जूनियर आदमी है उनको समझना पड़े, क्योंकि हम 150-60 पीपल के अंदर बोल रहे हैं, तो हमको थोड़ा तोड़ के ही बोलना पड़ेगा. तो इसमें हम जो बोलना चाहते हैं, जैसे एक लीडरशिप हम लोग का, जैसे कंपनी में एक हम देखे है जो वी आर लैकिंग फ्रॉम द लीडरशिप. लीडरशिप मीन्स जो नीचे से जो ग्रो होके आते हैं. इंटरव्यू, वी आर टेकिंग द इंटरव्यूज फॉर द एक्सटर्नल लीडर्स. लीडर्स मीन्स HODs. तो वाई वी आर टेकिंग द इंटरव्यूज फ्रॉम द HOD, फ्रॉम द एक्सटर्नल, फ्रॉम द वी कैन ब्रिंग द HODs फ्रॉम इंटरनल ओनली ना. हम लोग पहले भी इंटरनली सब आ चुके हैं. आज क्या है, बाहर से हम लोग ढूंढ रहा है. इसका मतलब ये नहीं है बाहर का आदमी कोई खराब है, बहुत अच्छा है. दे आर वेरी गुड कॉलीग टू अस and they are very much doing, they are very much efficient, they are very much doing very good work. But thing is that वो लोग भी मेरे साथ एग्री होंगे, जो इंटरनल में ग्रो होने में जो मजा है वो बाहर से वो चीज़ में मजा नहीं है. आज के बाद व पहले ज्वाइन करने के बाद वो लोग भी मेरे साथ एग्री होगा. तो वाई वी आर लैकिंग, पहले भी ऐसा कुछ बात नहीं आज लैक कर रहे हैं, पहले भी लैक करते थे हम लोग. जब 12-14 साल पहले के में आए थे कंपनी में,
वहाँ पे क्या था, बहुत सारा लीडर आए हैं, बहुत सारा लीडर गए हैं, बट समटाइम्स क्या हुआ, जब कुछ कुछ लीडर रह चुके हैं और काफ़ी लीडर चल गए, इसका मतलब ये नहीं है वो लीडर खराब था, कुछ ठीक था, कुछ हो सकता है हम लोग ठीक से चूज नहीं किया है, कुछ हो सकता है जो वो हमारे लिए बेस्ट फिट नहीं है। तो हम लोग सारे टाइम चेष्टा करते हैं कोई अच्छा लीडर लेने के लिए नहीं है, कोई बेस्ट आदमी को नहीं लेना है, हम लोगों को बेस्ट फिट लेना है जो हमारे जैसे एनवायरनमेंट फिट हो सकता है। सारे टाइम ये हम लोगों का चेष्टा रहता है, लेकिन हम लोगों का आदमी बेस्ट फिट वही हो सकता है जो आदमी अंदर से आते हैं। तो हम लोगों का क्या ये आजकल हो गया, जो जैसे लगता है हम मैनेजमेंट स्टूडेंट है, हम मैनेजमेंट पढ़ के आए, आई केम फ्रॉम द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो ठीक है भाई हम लोग तो बहुत कुछ सीख के आए हैं। ये हो सकता है, ये जब मैं भी पहले था, मैं भी थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, कोई बड़ा कंपनी से नहीं, तो बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से नहीं, बहुत छोटा, लेकिन उसके साथ साथ हम खुद चेष्टा की, वो पढ़ने के बाद तब तो रट्टा मार के पढ़ा था, उसके बाद चेष्टा की है काम के साथ साथ कैसे किताब खोल के वो मिला सकते हैं। हो सकता है हमको जब इंटरव्यू में बैठते हैं, कभी कभी जब मैनेजमेंट गाई आते हैं, जब उनको सेल्स का व मार्केटिंग का, ये मेरा व्यू है, जस्ट सुन के रहिएगा, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा लेकिन सुनते रहिए। लाइट थोड़ा निभाइए, लाइट थोड़ा बंद कीजिए। इसमें एक व्यू है जैसे जब हम सिंपल चीज पूछते हैं, जैसे मार्केटिंग हो, सेल्स में हो, डेफिनेशन, सिंपल चीज जो मैनेजमेंट गाई नहीं है वो बोल नहीं पाएगा, वो थोड़ा घुमा फिरा के बोलेगा, लेकिन अल्टीमेट वो डेफिनेशन में जाएगा घुमा फिरा के, जिसका एक्सपीरियंस है। लेकिन जो मैनेजमेंट गाई है वो सेल्स का सेल्स का डेफिनेशन बोल नहीं पा रहा है, मार्केटिंग का डेफिनेशन में थोड़ा लैकिंग हो रहा है। ये क्यों होगा? हो सकता है भूल गया, 2-3 वर्ड चेंज होगा, लेकिन बाकी क्या हुआ? बाकी तो ठीक से ही बोलोगे क्योंकि आप मैनेजमेंट पढ़ के आए हो, ये भूल नहीं सकते हो, ये रट्टा नहीं हो सकता है। तो इसमें कभी कभी लगा है हमको जो हम लोग कभी रट्टे के लिए पढ़े, अगर रट्टे के लिए पढ़े हैं तो हम लोग थोड़ा चेंज करें अपने आप को चेंज करें, इसके साथ मिलाए, उसके बाद हम लोग खुद ही आगे बढ़ेंगे और ये बहुत काम का आता है, बहुत काम का आता है। सेकेंड में आते हैं हाँ सेल्स में, जैसे बोलेंगे सारा आदमी अगर मैनेजर बन जाएगा, एचओडी बन जाएगा तो सेल्स कौन करेगा? ये भी क्योंकि दिमाग में मेरा आ सकता है, क्योंकि मैं भी कभी एग्जीक्यूटिव था इसलिए मेरा दिमाग उसमें चलता है। मैं भी आप लोगों को जैसा सेल्स से ही उठा हूँ, मेरे को कोई यहाँ पे नहीं बैठा दिया है आज मैं सेल्स से ही आया हूँ। तो इसमें मेरे को लगता है ये सेल्स तो फूड ही है, सेल्स तो करना ही है। उसके बाद सेल्स अगर फूड नहीं आएगा तो किडनी नहीं चलेगा, कोई हार्ट नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो ये जो फूड लाना है तो ये फूड तो पहले लाना है, लेकिन किडनी नहीं ठीक से चलेगा और हार्ट भी पहले ठीक से खराब हो जाए और वो फूड किस काम का लगेगा? वो फूड भी खराब हो जाएगा, शरीर भी नहीं चलेगा। तो सब जरूरी होता है, सेल्स भी जरूरी होता है, बैक ऑफिस भी जरूरी होता है, एचओडीज भी जरूरी होता है, मैनेजर्स भी जरूरी होता है। एक टीम चलाने के लिए सबका एफर्ट जरूरी होता है। तो सब कंपनी से अंदर से हम लोगों को ग्रो होना चाहिए। ये मेरे को थोड़ा बहुत 1-2 चीज लैकुना लगा था। इसमें लग सकता है हम लोग जे भैया जे ट्रेनिंग, आई नीड द ट्रेनिंग। देखिए 1-2 चीजें ट्रेनिंग से तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आदमी को खुद से ही वो सीखना पड़ेगा। आज मैं इस उम्र में मेरे को समझ में आ रहा है जी, ये खुद अगर हम ठीक से सीखते तो मेरा ट्रेनिंग का जरूरी नहीं होता, इतना ट्रेनिंग का जरूरी नहीं होता। जैसे एक बैट्समैन का मैनेजर का जरूरी नहीं होता है, जस्ट मैनेजर रहता है मैनेज करने के लिए। सचिन तेंदुलकर का कभी बैट ठीक करना है, बैट कब चलाना है, उसके लिए आदमी का जरूरी नहीं होता। वो छोटे उम्र में आचर कर सिखा दिया, बस हो गया। अभी सब मैनेजर का जरूरी होता है। वो कोई अंशुमन गायकवाड़ बा कोई मैनेजर आके सचिन तेंदुलकर को बैटिंग नहीं सिखाएगा, तो सब मैनेजर रहता है। तो अगर ट्रेनिंग ही काफी जरूरी होता है, ट्रेनिंग तो जरूरी होता है, लेकिन एक बात मेरे को, मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा इसके अंदर। जैसे विवेकानंद जी बोले हैं, नो वन वॉज एवर रियली टॉट बाई अनदर, ईच ऑफ अस टू टच हिमसेल्फ। द एक्सटर्नल टीचर ऑफर्स ओनली द सजेशन व्हिच राउजेस द इंटरनल टीचर टू वर्क टू अंडरस्टैंड थिंग्स। वो एक्सटर्नल टीचर आपको सिर्फ सजेशन दे सकता है, आपको एक दिशा दिखा सकता है, मगर आपका अंदर से कोई चीज नहीं घुसेगा तो ये कोई नहीं बना सकता है किसी को।
ये कोई नहीं बना सकता है। अगर कोई होता तो आचार्य के पास बहुत सारा स्टूडेंट था, लेकिन एक सचिन नहीं तैयार होता, एक किशन जी के पास एक अर्जुन नहीं तैयार होता, तो ये बहुत सारा चीज था। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, बहुत सारा आदमी, जब मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था तब हमको लगता था अरे बराबर इसी घर में बैठ के मेरा सीनियर भाषण दे रहा है, लेकिन वो आदमी सारे टाइम वो फील्ड में भी रहता है। ऐसा नहीं कि फील्ड में तो रहना ही चाहिए, वो मैं बाद में आ रहा हूँ, क्यों सीनियर को फील्ड में रहना चाहिए, बस सीनियर तो रहते ही है, साइड जो बोला वो तो फ्रंट में लीडर को रहना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हम लोग का जो देखते हैं वो आज एसी रूम में पहुंचे हैं, कैसे कैसे वो बोलते हैं स्टडीज, वो आज बहुत 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 मेहनत करके 10 साल 15 साल 20 साल तब वो रूम पे पहुंचे। तो हम लोग को सब ट्राई करना चाहिए, हम भी एक दिन वो मेहनत करके वो चीज करके हम लोग पहुंचे। जितना लीडर आप लोग देख रहे हो ना, हो सकता है मुझसे ज्यादा मेहनत किए है वो लोग, मुझसे ज्यादा जो आज यहाँ पे आए हैं मुझसे ज्यादा मेहनत की है, तो वो लोग आज ऐसे ऐसे नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक हम लोग का दिल में रहता है, ये तो बोल देता है, ये कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लीडरशिप वो ठीक है, क्योंकि आपका आजकल टुडे का स्ट्रेटेजी में एक आता है जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजीज आर टेकन फ्रॉम द एसिस रूम ओनली। अब देखिएगा ओबामा का जो ओसामा बिन लादेन का एक ये था, जब ऑपरेशन हुआ था तब एक फोटो आया था इसमें फेसबुक में, ओबामा बैठा हुआ है, उसके साथ हिलरी क्लिंटन बैठा है, उसके साथ लेफ्टिनेंट बैठा हुआ है, उसके साथ फुल टीम बैठा हुआ है। लेकिन उसके बाद वो वहां पे बैठ के सारा मॉनिटरिंग कर रहा था, सारा डिसीजन कर रहा था, ये कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ओसामा को मार रहा था वो लोग सैनिक था। इसका मतलब ये नहीं है सारे टाइम जो हैं, कभी ऐसा हो जाए अमेरिका के ऊपर अटैक आ जाए, ये जाए, वो तो जाएगा ही। और ओबामा आज ऐसे ऐसे नहीं वहां पे बैठ गया, वो कितना कष्ट किया है, कितना रोड रोड में घूमा है, क्या किया है वो हम लोग नहीं जानते। अगर पढ़ने से तब समझ में आएगा वो क्या कष्ट किया है। तो ये एक चीज है जो मेरे को बोलना था। अच्छा, हार्ड वर्क के लिए मेरा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मेरा एक आप लोग सुनिए थोड़ा ठीक से। 10 साल पहले, मैं थोड़ा एग्जाम्पल में ही आऊंगा इसमें। 10-12 साल पहले मैं तो मैनेजर था आरएनजी के अंडर पे। आई वॉज दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर नो सीट फॉर अस, फॉर नो सीट अलॉटेड टू अस इन ऑफिस। ऑफिस वॉज वेरी स्मॉल। तब क्या है, हम लोग साइट में ही जाते थे, सुबह होते थे साइट में ही जाते थे, शाम को भी साइट में ही रहते थे, फिर शाम के बाद बॉस बुलाते थे तो ऑफिस आते थे। इसमें हम एक दिन साइट में गए हैं, हम साइट का नाम नहीं करना चाहते उस टाइम। तब हम देखे हैं जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था वहाँ पे, वो मेरे पीछे पीठ है, मैं जस्ट घर में एंटर करते ही मैं थोड़ा मैं बाहर हो गया। मैं जस्ट देख रहा था वो शार्ट खोल के अपना शार्ट निचल रहा था, और उसके बाद गेंजी खोला है वो भी निचल रहा है। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा, उससे पहले हम देखा कोई पार्टी वहां से निकले हैं, हम जो बाइक लेके घुसे थे तब बाइक चलाते थे, बाइक लेते कोई पार्टी घुसे, तब हमको समझ में आया कोई डीलिंग हुआ है, कोई डील करके फिर पार्टी माने कोई फ्लैट टेट दिखाया फिर गया है। ठीक है, तो वो निचल रहा था, उसके मैं चुपचाप मैं बाहर से देख रहा था। फिर क्या, निचलने के बाद पूरा खालीगा में होके वो फोन कॉल चालू हो गया। फोन कॉल मीन्स पार्टी को फॉलो अप करना। ये फाकी नहीं मार रहा था, वो नीचल के फिर बैठ के फोन कॉल चालू करना चालू किया। उस टाइम पे साइट पे आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, वो जो साइट था, जो साइट हम लोग मैनेज करते थे, एस्बेस्टस का साइट, उसमें सिर्फ मार्बल टार्बल तो भूल ही जाइए, वहां पे सिर्फ सीमेंटेड किया हुआ है, पास में सीमेंट का बस्ता रखा हुआ है, और एक स्टैंड फैन था वो कभी चलता था, और करंट तो रहता ही नहीं था साइट पे, और जनरेटर में करंट था। तो हमको लगा जो ये आदमी कैसे कर सकते, ये तो इनडिसिप्लिन है। मैं तब घुसा हूं, मैं बहुत झाड़ा हूं उसको, ये कैसे हो सकता है जितना भी गर्म हो जाए। सच बात बोलूं, मैं झाड़ नहीं पाया उसको मैं कुछ नहीं बोल पाया हूं। ये सब आदमी लोग आज धीरे धीरे ये सब एचओडीज बने हैं। आप लोग भी ऐसे करते करते एचओडीज बनेंगे। शॉर्ट टर्म कोई गोल नहीं होता है। और हम लोग पहले टॉयलेट भी साइट पे नहीं रहता था, तब क्या होता था, हम लोग शादी बाड़ी में खाना नहीं खा सकते थे। क्या होगा, कल अगर पेट खराब हो जाए तो टॉयलेट कहाँ जाएंगे, और टॉयलेट रहता भी वो भी लेबर मिस्त्री के साथ सेम टॉयलेट, वो भी आदमी क्या है बहुत दूर सुलभ शौचालय में ऑटो पकड़ के जाता था, इस डर से हम लोग टॉयलेट में भी।
तो एक आदमी को बहुत कष्ट, मैं जस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, जो ऐसे ऐसे इनके रियल्टर आज बना नहीं है। भैया लाइट बंद करो ना ये। अच्छा, मैं कुछ लाइफ टाइम, अभी लाइफ टाइम शेयरिंग के लिए जाऊंगा, मैं कुछ ये दूंगा। लाइट में मेरा आंखें हेजिटेट हो गया है। इसमें एक चाणक्य नीति में कभी कभी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या होता है, उन्होंने बोला है, मेरे को अच्छा लगा, लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर गैदरिंग द एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर ओन लाइफ, यू नीड टू टेक द एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर लाइफ ऑल्सो। ये जरूरी नहीं है जो ये 60 साल का 70 साल का जीवन में हम, जैसे सर बोला, ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, ये मेरे ऊपर ही डाल के पूरा एक्सपीरियंस करना है। ये किसी से एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। सारे टाइम हम लोग को आंखें खुल के रखना है। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट भी आता है, जैसे अब्दुल कलाम जी का बहुत अच्छा पॉइंट है, डोंट रीड। मेरे पास कोई तो ये नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेजेंटेशन होने से बहुत अच्छा रहता था। डोंट रीड एनी सक्सेस स्टोरीज, you will only get a message. Read failure stories, you will get some ideas how to get success. सारे टाइम सक्सेस स्टोरी पढ़ने के बाद भी कभी कभी फेलियर का भी कभी जरूरी होता है सर, वो सक्सेस होने के लिए, स्टोरीज पढ़ने के लिए। तो सारे टाइम सब सुख दुख मिला के सब कुछ है। और एक चीज मेरे को अच्छा लगता है, जैसे वॉरेन बुफेट कहा था, नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ रिवर विथ बोथ फीट। सारे टाइम कोई एक्सपीरियंस करने के लिए ये जरूरी नहीं है जो कूद जाओ, वो भी एक्सपीरियंस के साथ साथ होता है, कहाँ कूदना है, कहाँ पे कूदना है, वो भी करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, बाकी बहुत एक चीज होता है मैच्योरिटी, जो लीडरशिप में हम देखे हैं कभी कभी मैच्योरिटी, हम लोग तो अच्छा सेल करके लीडर बन चुके हैं, पर कहीं पे बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में देखे हैं कि लीडर मीन्स मैनेजर्स बन चुके हैं, हम लोग लीडर बोलते हैं। मैनेजर्स बहुत बड़ा मैनेजर्स बन चुके हैं, हम लोग उनको लीडर बोलते हैं। तो मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी क्या है, जो हम बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, ये कभी मैच्योरिटी नहीं हो सकता है। मैच्योरिटी हो सकता है नॉट टेलिंग बिग बिग थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स। एक एचओडी का सारे टाइम सबके लिए ये होता है, डेस्क मेंटेन करना तो बहुत जरूरी होता है, वो तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन सबके लिए कोई भी चीटी से शेर तक, क्योंकि शेर को क्षमा करने में बहुत इजी होता है, चीटी को क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक चीज रहता है, जो एक मैच्योरिटी बहुत रहना चाहिए, उसका फीलिंग समझना चाहिए, सब चीज का फीलिंग, साइट का फीलिंग, सेल्स का फीलिंग, सब चीज का फीलिंग समझना चाहिए। बिहेवियर, कभी कभी बिहेवियर पार्ट में हम होटल में कहीं पे नाश्ते में देखते हैं, कोई आदमी जो वेटर बॉय है, भाई ऐसा करके बुलाता है। माने ये हमको कभी कभी तज्जुब होता है, जे एक आदमी कैसे एक आदमी को करके बुला सकते हैं। कभी कभी जब चौकीदार कभी सैल्यूट मारता है, हो सकता है कभी कभी किसी टाइम बहुत बिजी रहता है, मोबाइल में रहता है, इसमें रहता है, उसमें रहता है, बहुत ठीक है, वो कभी कभी मिस हो सकता है, लेकिन हम लोग उसके तरफ हंसते भी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी देखे है, कभी हंसते भी नहीं है। तो हंसने में क्या प्रॉब्लम आता है? कभी कभी मैसेज का ठीक से जवाब नहीं देते हैं, हो सकता है हम बिजी आदमी है, हम एचओडीज है, लेकिन एक बात समझो, जब 60 साल हो जाएगा, जब तुम्हारे पास मैसेज नहीं आएगा, तुमको कोई सैल्यूट नहीं मारेगा, वो तुम ले पाओगे क्या कभी? और तुम ये नहीं देखा जो कभी सैल्यूट जो मारता है उसका दिल में क्या बीतता है, उसको तो हम अवॉइड करके निकल जाते हैं, वो भी तो चाहता है कभी सैल्यूट मिले। तो हम लोग ये कभी सोचता नहीं है, हम ये जस्ट जल्दी निकल जाना चाहते हैं। तो क्या होता है इसमें, हम लोग अगर जो बिहेव करते हैं ना, वो कभी नहीं बोलता है कि भाई इसका बिहेवियर खराब है, ये बिहेवियर में वो कोई बोलता है इसको ठीक से शिक्षा नहीं मिला है, इसका पिताजी का माताजी का शिक्षा नहीं मिला, उसका फैमिली को टानता है, उसका पिताजी माताजी को टानते हैं, उसका वंश को टानते हैं, उसका कभी खराबी उतना नहीं आता है, सारे टाइम बोलता है इसको शिक्षा नहीं मिला ठीक से। हम क्यों अपना पिताजी माताजी को खराब करें? उन्होंने तो कभी खराब शिक्षा दिए नहीं है हम लोगों को। तो ये भी हम लोगों को कभी ठीक रहना चाहिए। किसी व्यक्ति का आचरण से वंश परिचय जान सकते हैं, किसी व्यक्ति का भाषा से उनका देश जान सकते हैं, आदर से उसका प्रेम जान सकते हैं, और उसका खाना शरीर से जान सकते हैं। तो उनका बिहेवियर से उनका वंश परिचय जान सकते हैं।
प्लीज लिसन, प्लीज ट्राई टू लिसन। कुछ कुछ आदमी का बोरिंग लगेगा, हम जानते हैं, लेकिन प्लीज ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है बहुत मोटिवेशनल बहुत कुछ मैं 15 मिनट 20 मिनट का ये नहीं बनाया हूँ, हो सकता है मैं बना सकता था 5 मिनट का 10 मिनट का, लेकिन ये बहुत मेरे को लगा है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे को कभी बोला नहीं है, कभी ना कहीं मेरे को कोई प्रेजेंटेशन में समझा है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन समझते क्या है? जे एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज और कॉमन थॉट्स बिटवीन 2 और मोर पर्सन, यही हम लोग मैनेजमेंट में सीखे हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, काइनेसिस, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, ये सब मैनेजमेंट भाषा में ऑफिस में चलता है और करना भी चाहिए। पूरा पढ़ के ये सब पूरा एकदम ठीक करके पूरा ठीक होना चाहिए कम्युनिकेशन का। लेकिन सेकेंड पार्ट कम्युनिकेशन हम जो बोलना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन, देखिए अगर मेरे शरीर से कोई रेडिएशन निकलता है, कोई खराब चीज़, कोई अच्छा चीज़, कोई भला चीज़, वो कोई ना कोई चीज़ पकड़ भी लेता है आदमी लोग। जैसे मैं रास्ते से जा रहा हूँ, कोई डॉग सोया हुआ है, वो अगर पगला नहीं हो तो वो कभी रेडिएशन समझ जाएगा मैं उसको मारना चाहता हूँ क्या नहीं मारना चाहता हूँ, वो ऐसे ही मेरे से बिहेवियर करेगा। तो हम लोगों को कम्युनिकेशन भी ऐसा करना चाहिए सबके साथ, जो हम भी नहीं कर पाते हैं, हम भी चेष्टा करेंगे, हम भी बहुत जगह पे माथा गर्म कर लेता है। ये मैं कोई प्रेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारा आदमी भी है जो माथा गर्म करता नहीं है, और मैं अपना सामने से भी किसी को देखा हूँ जो इतना काम करने के बाद भी माथा गर्म नहीं करता। पहले पहले तो बहुत माथा गर्म करता था, भाषा का कोई ठिकाना नहीं था, और आज माने ही इज लाइक व्हाट ही इज डूइंग, आई डोंट नो हाउ ही चेंज हिमसेल्फ। और एक चीज जो है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, वो तो मैं एक जस्ट लाइन में बोलना चाहता हूँ। ब्रूस ली का एक कोट बहुत अच्छा लगता है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ 10,000 किक्स वंस। एक बार 10,000 का वैरायटी जो किक्स, उससे ब्रूस ली का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस 1 किक 10,000 टाइम्स, उसमें उनका प्रॉब्लम था जो प्रैक्टिस 10,000 टाइम्स एक किक प्रैक्टिस किया है। तो प्रैक्टिस तो करना ही होगा हम लोगों को। अच्छा, जो एक चीज रहता है जो हम लोगों को लगता है भाई बॉस तो ये बन गया, हम तो इतना खटते हैं, ये करते हैं, कभी कभी फेट का भी बात रहता है, फेट रहता है, फेस डेस्टिनेशन का कुछ इसका कोई ये नहीं है, कोई खट के भी सारी जिंदगी नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत 1 2 4 केस में रहता है, तो फेट रहता है। फेट का एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, दैट यू मस्ट सी द वर्ल्ड कप ऑफ 1999, आप लोग थोड़ा छोटे थे उस टाइम पे, वर्ल्ड कप में दैट वाज द मैच ऑफ द last 6 match, that is the group league last 6 match and then semi-final match. So that was the last match that is between the South Africa and Australia. मैं फेट का बारे में बोल रहा हूँ, कैसे फेट चेंज होता है। उसमें मेरे को याद है that was the time, मेरे को रन का अगर 1 2 रन का इधर उधर हो जाए, that was the time South Africa did 271 runs and then Australia came for batting and Australia was 47 या 48 for 3. Then Steve Waugh came, and for me Steve Waugh is excellent. उनका कोई शोबाजी नहीं था, बैटिंग देखिए कोई बैटिंग का स्टाइल नहीं था, बैटिंग नॉर्मल बैट्समैन था, विव रिचर्ड जैसा स्टाइल बोलिए व गावर्ड जैसा स्टाइल कुछ नहीं था, बट ही जो बोल रहा था, जो फील्ड में जो सर बोला था, जो फील्ड में जाना चाहिए सारे टाइम, जो स्टीव वॉक ऐसा कैप्टन था जो आपको याद है क्या नहीं, जो क्रीज पकड़ के खड़े रहते थे। और उनका कभी बहुत सारा कैप्टन है जो भाई क्राइसिस के टाइम कभी कभी अपना शोबाजी करके निकल जाता था, लेकिन स्टीव वॉक का हम कभी देखे नहीं थे जो कभी भी शोबाजी करके उस टाइम को मैदान छोड़ के निकल आए हैं। वो सारे टाइम क्राइसिस, माने ही वाज वन ऑफ द बेस्ट क्राइसिस मैनेजर आई एवर सीन। तो उन्होंने उसके बाद आए हैं 57 में जब स्टीव वॉक था, आप अगर यूट्यूब देखेंगे, आज भी यूट्यूब में रहेगा, जे स्टीव वॉक ऑन द बॉल ऑफ क्लूजलर, लॉन्स क्लूजलर, एंड कैप्टन था वहां पे हैंसी क्रोनिये, लॉन्स क्लूजलर का बॉल पे जस्ट खड़े होके एक फ्लिक मारे, दे ही जस्ट लैप द बॉल, जस्ट लैप द बॉल, ना पैड चला था सामने ना पीछे चला था, एंड हर्शल गिव्स द प्लेयर हु वाज स्टैंडिंग एट मिड विकेट, and mid-wicket, and Herschel gives on that point of time he was the best, or one of the best fielder from the world. Herschel gives के पास एकदम easy कैच, जस्ट ये कैच आया था, कोई भी आदमी पकड़ लेगा,
वो कैच ऐसे करके जब उठाने गया वो हाथ से छूट गया है। तो स्टीव वॉक बोले हैं उसके बाद, ब्रदर यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप, यू डिडंट ड्रॉप द मैच, यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। और उस टाइम ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो फेट का तो बात है ही, ये हर्षल गिब्स जैसा आदमी अगर वो कैच मिस कर सकता है तो इसमें पूरा फेट के ऊपर ही है। कुछ कुछ जगह पे तो फेट है। अच्छा, कुछ जगह पे हम आएंगे, जैसे डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड बॉस। इसमें एक बॉस का एक रहता है, जैसे मैं जस्ट पढ़ के जा रहा हूँ, ये तो प्रेजेंटेशन नहीं है। ड्राइव्स एम्प्लॉइज, बॉस का जो रहता है, लीडर का रहता है कोचेस देम। डिपेंड्स ऑन ऑथोरिटी, बॉस का क्या है, ऑथोरिटी डिपेंड्स, ऑथोरिटी देने के बाद वो बॉसिंग चालू हो जाता है, बॉसिंग चाहिए, वो ऑथोरिटी मिला है। और लीडर को फॉलोअर फॉलो करते हैं। सडनली लीडर को महात्मा गांधी को फॉलोअर बनाए हैं, उसको उनको कोई ऑथोरिटी कोई नहीं दिया था। बॉस क्या होता है नॉर्मली, ये मेरा बात नहीं है, मैं तो जस्ट पढ़ के ही बोल रहा हूं। इंस्पायर फियर, फियर दिखाते हैं। और लीडर का क्या होता है, जेनरेट्स एंथुसिज्म, माने वो एंथुसिज्म जनरेट करता है। जैसे सर कुछ 15 मिनट 12 मिनट स्पीच में जो एंथुसिज्म जनरेट किए हैं हम लोगों के अंदर, जैसे फिर सेस आई, बॉस बोलता है सारी टाइम आई, लीडर बोलता है वी। इसमें प्रेस ब्लेम फॉर द ब्रेकडाउन लीडर का, और फिक्सेस द ब्रेकडाउन, लीडर का नहीं बॉस का, और फिक्सेस द ब्रेकडाउन है लीडर का। नोज हाउ इट इज टू बी डन, बॉस जानता ही है कैसे करना है, और लीडर शोज हाउ इट इज डन। ये सारे टाइम पोक नहीं करता है लीडर। बॉस का क्या होता है, यूजेस पीपल होता है, पीपल को यूज करना, यूज करते हैं। और लीडर का होता है डेवलप पीपल, पीपल को डेवलप करते हैं। हाँ, ये भी जरूरत है, उसके अंदर भी लीडरशिप कैपेसिटी होना चाहिए जो पीपल है। ये नहीं कि सारा सचिन बन जाता है, लेकिन वो भी डेवलप करता है। बॉस क्या होता है, टेक्स क्रेडिट, लीडर्स गिव्स क्रेडिट। बॉस ऑलवेज कमेंट्स, लीडर्स आस्क, लीडर्स बोलते हैं लेट्स गो, आस्क। ऐसा करने से लीडर सब कुछ अपने आप में ही ठीक कर लेता है नॉर्मली, लेकिन तब भी वो पूछता है। अगर कोई सेकेंड थॉट, थर्ड थॉट उनके अगर लगता है जो कहीं पे चेंज होने से अच्छा लगेगा, वो सारी टाइम, क्योंकि लीडर तो अपने लिए सोचता नहीं है, लीडर पूरा चीज के लिए सोचता है। लीडर सारी टाइम पूछ के ही फिर करेगा, फिर डिसीजन लेगा। और बॉस क्या होगा, बोलेगा जाओ। कभी कभी लीडर का जरूरी रहता है, कभी कभी बात नहीं सुनाने के लिए, बात सुनाने के बोलना पड़ता है, भाई तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो सुनेगा नहीं। लेकिन लीडर का ये रहता है, बॉस बोलता है गो, लीडर्स बोलता है लेट्स गो। एंड बॉस का, लीडर का एक चीज रहता है जो मैं समझा, मेरा जो व्यू है, बायस्ड कभी नहीं होता है, चेष्टा करता है 0 टेंस टू 0, बायस्ड बहुत कम रहता है। उसका फैमिली मेंबर हो, उसके लिए भी हो, ऑफिस में भी हो, दोस्त के बीच में भी हो, ये हो सकता है बात थोड़ा इधर उधर करके बोले, लेकिन वो बायस नहीं होता है। और साइड टाइम वो जस्टिस करता है, चेष्टा करता है जस्टिस करने का। जो भी हो, उसके सामने उसका लड़का भी खड़ा हो जाए, लड़की भी खड़ी हो जाए, उसका अपना टीम का मेंबर खड़ा हो जाए, अपना दोस्त खड़ा हो जाए, लेकिन वो बात सुनने में खराब लगेगा, लेकिन वो जस्टिस करता है। ये लीडरशिप का, बॉस का भी हो सकता है बॉस जस्टिस नहीं करेगा, लेकिन लीडर जस्टिस करेगा। एक मैं थोड़ा महाभारत में बहुत फॉन्ड ऑफ महाभारत था। ये बहुत सारा आदमी महाभारत, नया महाभारत देखे, हम जब छोटे उम्र पे देखे तो मेरे को बहुत कुछ याद नहीं था, लेकिन एक बायसनेस में क्या होता है ये महाभारत देखने के बाद आप लोगों को भी इस उम्र में समझ में आएगा। जैसे कुछ मैं जस्ट ये बोल रहा हूं, ये आप सुनने का चेष्टा कीजिए। जैसे भीष्म और कृष्ण जी और अर्जुन था, तब लास्ट में भीष्म का पहले का मरने वाले का पहला, उससे आगे वाला दिन था। जब भीष्म उस दिन पूरा एकदम हल, माने जो मचा के रखे थे वो पूरा खत्म, 2 अक्षर सेना था वो खत्म करने वाले थे उस टाइम कृष्ण जी सोचा जे ये तो कोई उपाय नहीं है, हमको फेस ही करना पड़ेगा। और कृष्ण जी बोला था हम फेस नहीं करेंगे, पहले ही बोल दिया था। तब उसके सामने अर्जुन आया, अर्जुन चुपचाप पूरा बेबस होकर खड़ा हुआ है। उसके बाद जब भीष्म के कथोपकथन पहले हुआ तो भीष्म तब कृष्ण जी बोला जे तुम अस्त्र रख दो या तो मरो, ये कोई उपाय नहीं है। तो भीष्म बोला मैं सारे टाइम धर्म के साथ था, मैं क्यों मरूं, मैं क्यों अस्त्र रखूं। तब कृष्ण जी बोला आप धर्म के साथ कभी था ही नहीं, आपका चारित्रिक दृढ़ता कभी था ही नहीं,
तो बोलता है मैं शांतनु, पिताजी शांतनु के लिए मैं इतना कुछ किया हूँ, सिंहासन के लिए किया हूँ, मेरा धर्म नहीं है, तुम मेरा धर्म में शक कर रहे हो, मेरा धर्म नहीं है, धर्म के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ। बोले तुमका धर्म भी नहीं है, तुम्हारा धर्म भी मिथ्या है, तुम्हारा चारित्रिक वैशिष्ट्य भी मिथ्या है, क्योंकि तुम धर्म सिर्फ अपने लिए किए हो। तुम कभी जो धर्म करता है सबके लिए करता है और तुम अपने लिए किए हो। तो वो बोलता है जे मेरे इसलिए मैं अजय हूं। तो बोलता है नहीं, मेरे सामने, तब किशन जी बोला मेरे सामने कोई अजय नहीं है, मैं कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, कोई भी ऐसा शाप नहीं है, कोई भी ऐसा ये नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मैं मिथ्या नहीं कर सकता हूं। तो वो चीज क्या हो, उसके बाद कथोपकथन बहुत हुआ। उसके बाद वो रथ का पाया उठाया, उसके बाद सामने गया है, वो बोला जे हम मारेंगे, ये करेंगे। तब भीष्म जी वो देखा कि सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया, सिर्फ किशन जी बात कर रहे हैं उनसे, उनका तीर रुक गया है। तो बोला ये पाठ ये क्या हुआ है? तब बोला जे ये तो हुआ है जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, आप अस्त्र रख दो ये। लेकिन बोला मैं गलत किया। बोले सेम ही चीज बोला, बोले कब तुम कभी डिसीजन लिए ही नहीं हो, तुम कभी डिसीजन लिए ही नहीं हो, तुम क्या है, तुम्हारा अपना धर्म सम्मान। बोले तब अपना, मैं तो अपना पिताजी का धर्म माना हूं, तो अगर धर्म माने है तो ये युद्ध क्यों है, ये युद्ध क्यों है, ये दूध सभा क्यों हुआ है द्रौपदी का, ये फिर जतुगृह क्यों हुआ है? तब वो बोला पार्थ मेरे को ऐसा कभी कोई नहीं समझाया था, कभी नहीं समझाया था, उसको समझाए कभी नहीं समझाया था, इसलिए ये हुआ है। अगर पहले मेरे को कोई समझा देता तो आज हो सकता है ये युद्ध नहीं होता। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो बायस लीडर को कभी बायस नहीं होना चाहिए, हम लोगों को कभी नहीं होना चाहिए, हम लोगों को बॉस नहीं लीडर बनना है। फिर डिसिप्लिन में आता हूं, मैं कभी कभी देखा हूं, कभी कभी लास्ट मोमेंट है, हम लोग भाग भाग के डिसिप्लिन में ऑफिस में आते हैं, 1 सेकंड पहले ये देते हैं, 1 सेकंड पहले मशीन में देते हैं, जाने के टाइम कोई देता है कोई नहीं देता है, क्योंकि लगता है जो हम जाने के टाइम नहीं देंगे। देखिए ये जो सच बात है मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें क्यों ये प्रॉब्लम है। जाने के टाइम हम तो भाई 15 मिनट पहले नहीं जा रहा है, अगर 15 मिनट एक दिन पहले जा भी चुके हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, देखे जाओ ना भाई, बहुत सारे आदमी है हम लोग जाके नहीं देते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी रहता है, और डिसिप्लिन के लिए कभी कभी हम समझते हैं कभी कभी ऐसा होता है जे हम लोग बोल सकते हैं भाई अपना आदमी को मेरा साइड से दे दो मेरा अटेंडेंस, हम हो सकता है उनका बॉस, हो सकता है टीम लीडर, हो सकता है असिस्टेंट मैनेजर। भैया वो जब अपना जो वीकनेस जो जान जाएगा, एक चीज जानो, जो कोई अपना बड़ा पाप वो जिंदगी का सबसे बड़ा वीकनेस हो जाता है। पाप इतना भी मत करो जो अपना वीकनेस बन जाता है, हम आगे के लिए वो खराब हो जाता है। चीज क्या होता है, छोटा छोटा पाप बहुत बड़ा चीज में बन जाता है। आप तो वो आदमी को खत्म नहीं कर पाओगे, पाप को खत्म करो, नहीं तो क्या होगा ना, और एक आदमी ऐसा बनेगा, तीसरा आदमी ऐसा बनेगा, चौथा आदमी ऐसा बनेगा, अगर अपने आप को मैं ठीक ना करूं तो। फिर होता है लीडर डोंट, ये एक चीज है, लीडर डोंट मेक अ डिसीजन व्हेन ही इज एंग्री, कभी वो परमानेंट डिसीजन एंग्री में नहीं लेता है। एंड ऑल्सो डोंट मेक एनी प्रॉमिस व्हेन ही इज हैप्पी। ये मूड कंट्रोल बहुत जरूरी होता है एक लीडर के लिए। हम लोग क्या है ना, हम लोग, मैं सोचता हूँ गुड बॉस है हम लोग सारा, कोई फील्ड का लीडर हो सकता है, लेकिन एक टोटलिटी लीडर में जैसे कोई ग्रेडेशन का जरूरी होता है, जैसे माध्यमिक में, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, मैथ्स में अगर 80 मिल गया और बांग्ला में व इंग्लिश में 30 मिल गया, अल्टीमेट तो एग्रीमेंट 60 हो गया ना। तो लीडरशिप में भी अगर हम बॉस में बायस्ड हो जाए और इसमें अगर हम इसमें ये हो जाए, तब प्रॉब्लम क्या होता है, तब लीडरशिप क्वालिटी डाउन हो जाता है। तो सबके लिए ये बहुत जरूरी होता है, ये सब कुछ एग्रीगेट में ठीक रखने के लिए। और एक है जेचे मान केदे शोक पावा जाए ना, तो ये हम लोग को अदा करना पड़ता है। तो लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। अच्छा, हम लोगों को लग सकता है भैया हम तो कभी लीडर नहीं बन पाएंगे। हम किसी आदमी से बात किया, जैसे धीमान का जो एक्सपीरियंस था वह ये था, आशीष का था, जे इतना दिन तक वेट किए है, इतना दिन वो वेट किए, 10 साल वेट किए, 11 साल वेट किए, किसको कब मिलेगा, जिंदगी कैसे चेंज हो जाएगा, किसी को कोई पता नहीं है। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जिंदगी में हो सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं
আমি টব বানাই ছাদে, টব আমার ভালো লাগে, মালি থাকে বা আমি আগে নিজে বানাতাম, এখন আমি টাইম পাই না। তো টবে যখন আমি দেখি যে কোনো বার্ডস আসছে, 80% কেসে দেখি যে খুব হেলদি বার্ডস এসছে, 20% কেসে দেখি যে বার্ডসগুলো হেলদি নয়। तो इट इज़ ऑब्वियस दैन ये हेल्दी बर्ड्स जो है तो हेल्दी फूल देगा। मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ बर्ड्स खराब हो जाता है हेल्दी बर्ड्स होने के बावजूद भी, बट कुछ बर्ड्स रहता है जहाँ पे हेल्दी नहीं है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो इतना बड़ा फूल देता है जो हेल्दी बर्ड्स है उससे भी बड़ा फूल देता है। ये मैं जिंदगी से जाना हूँ, ये मैं नहीं बोलूँगा जे भाई तुम सिद्धू को देख के सीखो जे वो इतना शाही था वो कैसे बन चुका है, वो कैसे आज इतना बोलता है, ये तो बहुत आगे वाला बात है। भाई प्रिस्टोडियस को देखो, वो कैसे पैर बिना भाग सकता है। लियोनेल मेसी है जो हार्मोन का इंजेक्शन लेता था वो भाग रहा है, वो कैसे खेल रहा है। लेकिन ये जो फूल हम देखे हैं ना, इससे सीखे हैं जे हम लोग सीधू मत बनो, लेकिन कुछ तो बन सकते हैं, कुछ तो बन सकते हैं। ऐसी जिंदगी बस कट जाएगा, क्या फायदा है फिर जिंदगी के बाद, कुछ छोटा ही बन जाए। अच्छा, लास्टली जो हम जो बोलना चाहते हैं, पहले भी मैं बोला था, ये हमको कभी कोई सिखाया नहीं था, मैं वो कंक्लूड करना चाहता हूँ। अभी मेरे को कोई बोला नहीं था, तो आज मैं ये बोलना चाहा जो, और कभी कभी कोई बात आता है, कोई किसी का मेंटर रहता है, गुरु रहता है। मेरा मेंटर मेरा कभी लगता है, आज मेरा 23 साल में पिताजी को खोए थे, तो मेरा पिताजी उस टाइम पे मेरे को लगता है जो मेंटर, ये सब टाइप का शिक्षा उनसे ही मिले हैं।